conductivity of pure semiconductor or conductivity of p-type and n-type semiconductor. So in case of p-type and n-type semiconductor and pure semiconductor, so we know that sigma or the conductivity is n e mu, where n is the carrier concentration or electron concentration, e is the charge, and mu is the mobility of charge carrier. E equals to magnitude of the charge, which is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So in case of p-type and n-type semiconductor, we have p type semiconductor, electrons will be in minority and holes will be in majority. Similarly, in n-type, electrons will be in majority and holes will be in minority. In case of calculation of conductivity for p-type or n-type semiconductor, carrier concentration of both electron and holes should be considered, and mobility of holes and mobility of electrons. So mobility of electron. So mobility of electrons is represented by mu n, and mobility of holes will be represented by mu p. But pure semiconductor के केस में concentration of holes and concentration of electrons will be equal to intrinsic carrier concentration. That is concentration of electrons if I consider as n, concentration of holes p, and intrinsic carrier concentration equal to ni. So these are equal क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स जनरेट होते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर और सम अदर फिजिकल कंडीशन. तो इस केसेस में इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर के कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट और विल बी इक्वल ओनली because they are generating in pairs. So if we try to formulate or give a mathematical expression for conductivity of pure semiconductor, so for p-type or n-type semiconductor, and concentration of electrons into mobility of electrons plus concentration of holes into the mobility of holes will be multiplied with the charge of the carrier concentration. But in case of pure semiconductor, conductivity will be Ni or intrinsic carrier concentration and summation of mobility of electron or summation of mobility of holes into magnitude of the charge carrier, that is equals to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So अगर हम इसे सिंपल वर्ड में फॉर्मुलेट करें तो सिग्मा इक्वल्स टू n mu n plus p mu p into E, where mu n and p is the mobility of electron and holes, and for intrinsic carrier concentration sigma equals to ni mu n plus mu p into E, where ni equals to intrinsic carrier concentration. नेक्स्ट अगर हम ये देखें कि म्यू एन एंड म्यू पी में क्या रिलेशन है, तो इट इज बेसिकली ऑब्जर्व्ड और जनरली ये देखा गया है कि मोबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो हायर होती है देन मोबिलिटी ऑफ होल्स. तो जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट पी एन जंक्शन, जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट बीजेटी, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स, एंड जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉसफेट, why n MOSFET is generally considered more over p MOSFET in terms of switching, और similarly npn में n channel और npn pnp के ऊपर क्यों considered किया जाता है due to this factor only. So we will discuss over there only about this concept. But यहाँ पे हम देखेंगे कि अब कंडक्टिविटी को मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करने के लिए प्योर टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप और डोप्ड टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में. तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. क्या रिलेशन है कि जितना ज़्यादा आपकी रेजिस्टिविटी होगी, रेजिस्टिविटी जितना ज़्यादा होगी, जितना इंक्रीज होगी, कंडक्टिविटी जो कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं वो उतनी ही कम होगी. तो एक बेसिक रिलेशन है. तो इस हिसाब से जो कंडक्टिविटी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी को हम बेसिकली रो से डिनोट करते हैं. इन शॉर्ट एक सिंपल वर्ड में अगर इन सिंपल सेंटेंस में बोला जाए कंडक्टिविटी होती क्या है, तो कंडक्टिविटी सिंपल ये बताती है, डिनोट करती है किसी भी मटेरियल का करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या है. और हमने रिलेशन देख लिया है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में क्या रिलेशन है. कंडक्टिविटी डिपेंड करता है कि कितनी तेज चार्ज कैरियर मोबिलाइज हो रहा है, इसीलिए कंडक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंड करता है मोबिलिटी पे. अब हम लोग कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के केस में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी of semiconductors as well as conductors. So in case of conductors,
and semiconductors. So in case of conductors, whenever temperature increases, resistivity increases. So whenever temperature increases, resistivity increases. If resistivity increases, then conductivity of metal will decrease. But in case of lightly doped semiconductor, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और रेजिस्टिविटी घटेगी. सो वी हैव डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी. लेकिन ये इन केस ऑफ लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर होगा. लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटेगी. मतलब लाइटली डोप्ड सेमीकंडक्टर जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है. लेकिन अगर हम लोग बात करें सेमीकंडक्टर के हैविली डोप्ड कंडीशन में, तो हैविली डोप कंडीशन में सेमीकंडक्टर में जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हमारी रेजिस्टिविटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी घट जाएगी, सेम एज इन केस ऑफ मेटल. तो सेमीकंडक्टर अगर हैविली डोप्ड है तो वो भी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा. जस्ट लाइक कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टिविटी बढ़ी और कंडक्टिविटी घटी. तो टेम्परेचर बढ़ाने से अगर रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है. सो अगर हम लोग जितने भी हमने पॉइंट्स कंक्लूड किए हैं उसको 3 पॉइंट्स में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी लाइक लेसर द रेजिस्टिविटी ऑफ फॉर चार्ज कैरियर, उतनी ही ज़्यादा कंडक्टिविटी, मोर विल बी द कंडक्टिविटी. ऑल्सो जो कंडक्टिविटी डिपेंड करती है कि कितना चार्ज मोबाइल है, कितना मूवमेंट कर रहा है. तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, तो इंसुलेटर केस में मूवमेंट होता नहीं, चार्ज कैरियर ही नहीं होता है, तो इसलिए कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती है. मेटल के केस में जितना ज़्यादा चार्ज मोबाइलाइज होता है कंडक्टिविटी उतनी बढ़ती है. So in case of conductor, conductivity is directly dependent on mobility. So in short हम लोग कह सकते हैं conductivity denotes current capacity of any material. conductivity जितना ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा उसमें current flow करेगा. So in semiconductor हमने देखा कि conductivity mainly depends on charge carrier, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों में डिपेंड करती है. सेमीकंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होती है, तो कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. जितने ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएंगे प्योर सेमीकंडक्टर में. और इन टर्म्स ऑफ एक्सट्रिंसिक में भी मेजॉरिटी कैरियर्स पैदा हो जाएंगे. तो कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर में बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, हमने देखा था, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है. सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज बिकॉज रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो बट इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर हमने देखा लाइटली डोप्ड और हैवीली डोप्ड. लाइटली डोप जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है. लेकिन हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर मेटल की तरह बिहेव करता है. सो ऑल्सो डोपिंग इंक्रीजेज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, बट हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जस्ट लाइक मेटल, बिकॉज हैवीली डोप्ड semiconductor acts like metals. So this is for the conductivity of our semiconductor. So we have seen how conductivity depends on mobility of holes and electrons in case of pure semiconductor and in case of extrinsic semiconductor, and we have concluded in these 3 short points. So thanks for watching.